माना के आजकल रूठा वक्त है, जिंदगी का सफर थोड़ा सख्त है, रुका हुआ है इस जहां का कारवां, ये रात जाएगी गुजर तो देखना, मेरी दोपहर खिड़कियों पर से आने दे, अंधेरे है किस काम के तू इन्हें जाने दे, मेरी दोपहर खिड़कियों पर से आने दे, अंधेरे है किस काम के तू इन्हें जाने दे। ये जिंदगी फिर से नई ले आएगी एक सुबह, आगे बढ़ा अपने कदम, कल जो हुआ भूल जा, यकीन रख नहीं तो खुद से हारना, है लाख मुश्किलों से तुझको जीतना, मेरी दोपहर खिड़कियों पे से अंधेरे है किस काम के तू इन्हें जाने दे, मेरी दोपहर खिड़कियों पे से अंधेरे है किस काम के तू इन्हें जाने दे। Om Shanti. Good morning, everyone. So today is the part 2 of the same Murli that we heard yesterday, which was of the 20th December 1992. And Baba is speaking to 4 groups. And I would suggest you see yourself sitting in one of the groups. Of course, we will take inspiration from, Baba's Srimad that he speaks to each and every group. But maybe you choose group 1 or group 2 or whatever, and you see yourself sitting there. In essence, you can see that group 1, Baba is talking about the elevated stage. And even in your simplest act that you do, if you have elevated stage, then you're following Baba. The elevated stage is where my heart is connected to Supreme Soul. And group 2, he's talking about the balance of the intellect and having that faithful intellect, so that there is carefreeness, there is easiness, there is success, there's victory, all of that. Group 3, Baba is talking about happiness as being the source or of nourishment, where you will feel healthy, wealthy, and happy. And then group 4, Baba is talking about having the awareness of drama very, very clear in the intellect, so that any obstacle, any scene, any situation, I can say nothing new and experience it as a game. In group 5, Baba is talking about the quality of surrender that Baba wants, so that we can be ever ready, ready to leave, ready to go home, and ready to bring heaven on earth. Yeah. So that's Baba's Murli for today for 5 groups. And just like yesterday, I think I figured out. So I want to hold on, Rakiben, 1 second, please. Um,
I want to show you all this. So if you again go on that same place like yesterday, and then click on that link. Or you can just go to menti.com and use this code and answer this question. You can answer in words, you can answer in sentences. It will help me to see, how much homework you did, right? What did you get from yesterday's main Murli, right? So either use the link that is in the chat box or go to menti.com and just use this code 96078350. Are you able to use the link? No? Yes? Can somebody speak? No, you're not able to use the link? Yes, Hansa Vincent. Okay, now I can see. Okay. Yep. Obedience, yes, that was the number one quality that Baba said. When you say yes, my Lord, for Srimad, then automatically the powers will also say yes, my Lord. Don't wait for time. Yes, Baba said have a good speed so that time will be invoked. You don't have to wait for time. We are master creators, right? Creators of the powers, right? And so powers are my creation. Very beautiful. Claim your rights, right? Baba said, yes, you have right over the father and fathers, inheritance of all the powers. Humbleness, humility was one very good quality. Um, what else? Only 3 people have put in the words. How many are there in the group? 18 of you. 4. Okay. Don't know how to use. So sister, if you just go on this menti.com and then you can just plug in this code, or I have put the link in the chat box. If you just click on the link, then that will also help. Shanti Please. sister. Hmm. I don't know the question. Actually, I was not there in the class yesterday. The question is, oh, you were not there yesterday? Yeah. Okay, so then you, it's main, if you read the Murli, then also you can answer this. What was your main insight that you gained from yesterday's Murli? Because this is continuation of yesterday's Murli. Sister, it's a humble request. Can you put the link again? I joined a little late actually. Please. Okay. Yes, yes, yes. Yeah. Okay, wonderful. So we will leave this on the side, maybe come back to it towards the end. But every one of you have a different answer, which is very intriguing, but very nice. I'm happy to see 9 of you participated. So that's perfect. Very good. All right, so I have to stop share. Okay, so Amiben, I will request you now to please show the. Okay, so let's see. You chose your group, in which group you're sitting in front of Baba. This is in Hindi, so I will speak in Hindi. But if there is any one of you who do not understand Hindi at all, you can ask me in English later. So, Om Avyakt Shanti. Bab, I yes. do not know Hindi, so sorry. What is your name, sister? Renuka. Renuka Ben. Okay, it's not available in English, but I will try to use few words so you will get the gist of it. Okay. Okay, thank Would you, that? Ben. Okay. So, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर 1.
साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है. So even if you're doing a very ordinary action, if you maintain an elevated stage, then that is like showing the proof that you are following the Father. सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो. संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग. तो संगम युगी हो, आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना. आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है. आत्मा इज द मेन एक्टर एंड द बॉडी इज द नेचर, प्रकृति. तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूँ. सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा. इसीलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है. फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते हैं. लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना. तो पुरुषोत्तम युग है. पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूँ. पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है. So I, the soul, I am the elevated being, and this confluence age is also the most elevated age, right? And Baba is saying we're also becoming most elevated of all at this time. So my responsibility or my kartavya is also सर्वश्रेष्ठ. उठा, खाया, पिया, काम किया, ये साधारण कर्म नहीं. साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है. जैसे जो असली हीरा होगा वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा. छिप नहीं सकता है. तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना. So the main two things is Sreshta Smriti, elevated awareness, Sreshta Sthiti, elevated stage. If I maintain these two things, whilst I am doing any ordinary action, that action will no longer be ordinary, Baba is saying. कैसे अभी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता है, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए. तो ऐसे है, या दफ्तर में जाकर के, काम में जाकर के आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो. हाँ, अभी गुप्त हो, काम भी साधारण है, इसीलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है. You remember, those who have seen Mahabharata, they would know that when Pandavas were sent, right, उनको जब 12 वर्ष के लिए भेजा गया था जंगलों में, तो they were not there, not living as Pandavas, right? They were living as very ordinary beings, especially during अज्ञातवास का जो वो लास्ट ईयर था. सो बाबा इज सेइंग कि अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसीलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है. गुप्त रूप में राजाई नहीं की है, सेवा की है, राइट. और अज्ञातवास में वो एक राजा के राजधानी में रहते थे, वहां पर सेवाएं करते थे. तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना. चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना. Right, so officers when they sign, right, the mayor of the city or governor, at the end they will write your servant, right, आपकी सेवा में. So that is what Baba is referring to here. बड़ा ऑफिसर हो लेकिन सर्वेंट ही है ना. तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो, तो वह झलक और फलक दिखाई दे. जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था. सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है. अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है. तो फॉलो फादर है ना. ऐसे नहीं कि साधारण काम कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही है, कपड़े धुलाई कर रही है, काम साधारण हो, लेकिन लेकिन बाबा कह रहे हैं स्थिति साधारण न हो. जैसे दूसरे वैसे हम नहीं. चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए.
ये चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं। महान है या साधारण है, यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होंगी। Meaning, whoever sees you, they will not feel that they are looking at an ordinary human being, or they are looking at an ordinary housewife, or they are looking at an ordinary female. No. Baba is saying if you maintain your awareness and your stage to be elevated, then everybody will find you very different, very श्रेष्ठ, अलौकिक। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हो, किनारे बैठे हो, पीछे बैठे हो, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना, साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्टूल में चाहे सामने भी बैठे हो, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों के चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते यह तो जैसे बाप जैसा है। राइट, समटाइम्स द सन विल लुक एग्जैक्टली लाइक द फादर और द डॉटर लुक्स लाइक द मदर. So then they say, no, this one looks exactly like his father. So that is what Baba is saying. You have to be so much equal to Brahma Baba in your characters, in your disciplines, in your way of behaving. So people should say, oh, हाँ, ये तो ब्रह्मा की संतान है। तो यहाँ चेहरे की बात तो नहीं है, लेकिन चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर? हाँ, बाबा पूछ रहा है, आप क्या चाहते हैं? समीप रहना चाहते हो या दूर? इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है, वह परमधाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। So if I experience closeness in my stage, in my awareness at this time, at the confluence stage, then in my future also I will be close to Krishna's kingdom, right? एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। हर कर्म को चेक करो। This is Baba's Srimad for the ones who selected group 1. हर कर्म को चेक करो। बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो। मीन्स पहले चेक करो फिर उसको प्रैक्टिकल में करो। ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि यह ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करे। अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचता है। सच अ ब्यूटिफुल साइन, right? If I am Jnani to Atma, I will first think and later on do it. If I am in a Jnani, then I will first do it and later on repent. हाँ, क्या किया मैंने? तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते हो? पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाए नहीं, चैलेंज करने वाले हैं। स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं क्या? तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो? जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े, राइट? जो कमजोर होते हैं तो वो सोचते कि डेट आगे बढ़े। I was so like kind of interesting to listen to this line, because with this COVID now I have a lot of nephews and nieces, and every time I hear their exams are postponed, every time I hear their exams, and I feel some of them are so happy. I'm like, हाँ, this is what Baba means, when जब आप कमजोर होते हैं तो आप सोचते हो कि हाँ डेट आगे जाए तो और अच्छा है और अच्छा है। So I have to check myself. Do I like that the paper should have come tomorrow? Why did it come today? Or I'm happy.
आप तो होशियार हो ना, बाबा कहते हैं। ये निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजय है और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। You should write this sentence somewhere and put it on the wall. Baba is saying, you were victorious, you are going to be victorious, and you will always be victorious. थे, है और रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है। चेहरा ही बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते हैं वो कितना खुश रहते हैं। इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं। कभी भी खुशी के बाजे बंद न हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया ना। जहाँ खुशी के बाजे बजते हैं वहां रोना नहीं होता। So, group number 1, you have to test and check yourself that do I cry? Or am I always happy because I am always victorious? ये वरदान दे रहे बाबा जैसे। Now Baba is speaking to group number 2. यथार्थ निर्णय का आधार निश्चय बुद्धि और निश्चिंत स्थिति। निश्चय बुद्धि is faithful intellect. निश्चिंत स्थिति is carefree state or stage. And if I have faithful intellect and carefreeness, then I will always take accurate decision. That is the foundation for making accurate decisions. सदा अपने को विजयी रत्न अनुभव करते हो। सदा विजयी बनने का सहज साधन क्या है? सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल, एक भरोसा, एक में भरोसा, और उसी एक भरोसे से एक बल मिलता है। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है। अगर कोई समझते हैं कि मुझे निश्चय है, तो बाबा कहते हैं उसकी निशानी है कि वो सदा निश्चिंत होगा और निश्चिंत स्थिति से जो भी कार्य करेगा उसमें जरूर सफल होगा। जब निश्चिंत होते हैं तो बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। अगर कोई चिंता होगी, फिक्र होगा, हलचल होगी तो कभी जजमेंट ठीक नहीं होगी। तराजू देखा है ना? तराजू की यथार्थ तौल तब होती है जब तराजू में हलचल नहीं हो। Right? When you look at the balance, both sides have to be stable. Then you say, हाँ ये ठीक तोला है आपने, right? अगर हलचल होगी तो यथार्थ नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही बुद्धि में अगर हलचल है, फिक्र है, चिंता है, तो हलचल जरूर होंगी। इसलिए यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फॉलो फादर है ना। यह करूँ, वह करूँ, हाँ ये तब सोचे जब अपना कुछ करना हो। फॉलो करना है ना, तो फॉलो करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। कदम पर कदम रखना है। कदम है श्रीमत। जो श्रीमत मिली है उसी प्रमाण चलना, अर्थात कदम पर कदम रखना। तो सोचने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। निश्चिंत है तो सदा ही निर्णय यथार्थ देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली विजय होंगे। निर्णय ठीक नहीं होता तो जरूर हलचल है। जब भी कोई हलचल हो तो सोचो कि ब्रह्मा बाप ने क्या किया, क्योंकि ब्रह्मा बाप कर्म का सैंपल है। ब्रह्मा बाप ने हर कदम श्रीमत पर उठाए हैं। तो फॉलो फादर, सिर्फ फॉलो ही करना है। कोई नया रास्ता नहीं निकालना है, सोचना नहीं है। जब मन मत मिक्स करते हो तब मुश्किल होता है। एक तो मुश्किल होगा, दूसरा असफल होंगे। Right? If I mix the dictates of my own mind with Srimad, then two things happen. One is it will be difficult because nobody has treaded that path. And second, there will be defeat. Successful नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं मेहनत तो की है ना,
गांव में खेती का काम करते हैं तो मेहनत करते हैं। यहाँ तो मेहनत नहीं करनी है, सहज पसंद है या मेहनत पसंद है। मेहनत करके अनुभव करके देख लिया ना। अब बाप कहते मेहनत छोड़ो, हाँ मोहब्बत में रहो, लवलीन रहो। जो लव में लीन होता है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। Right? Love has that power to transform us. We don't have to do extra labor work in that. ब्राह्मण माना मौज, ब्राह्मण माना मेहनत नहीं। बाप ने कहा और बच्चों ने किया। इसमें मेहनत की क्या बात है? बच्चों का काम है करना, सोचना नहीं। सहज योगी होना, सदा विजयी रत्न होना। ये रूहानी निश्चय चाहिए कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। इतना अटल निश्चय हो। There is a very beautiful story about this, but I don't know if the time will permit me. So we'll see at the end. जब फॉलो फादर कर रहे हो तो कौन बनेगा? वही बनेंगे ना। निश्चय तो निश्चय ही हुआ ना। अगर निश्चय में 10%, 20% कम हुआ तो निश्चय नहीं कहेंगे। Right? Faith is faith. There can't be percentage in faith. जो सदा विजयी है उसी को ही बेफिक्र बादशाह कहा जाता है। जो अभी बादशाह बनता है वो ही फिर भविष्य में बादशाह बनेंगे। अभी बेफिक्र बादशाह नहीं तो भविष्य में भी नहीं। तो राजा बनने वाले हो या औरों को राज्य करते हुए देखेंगे। बाबा पूछ रहा है स्वराज्य है तो ही विश्व राज्य है। ऐसे अधिकारी हो, अधीन तो नहीं होते हो। क्या करे, हाँ संस्कार पक्का है। ऐसे तो नहीं कि चाहते नहीं लेकिन हो जाता है। तो बाबा कहते इसको कहेंगे अधीन। तो कभी अधीन तो नहीं हो जाते। क्रोध करना तो नहीं चाहते हो लेकिन आ जाता है। चाहते नहीं है लेकिन मजबूर हो जाते हैं। नहीं, बाबा कहते हैं अधिकारी बन गए तो अधीनता समाप्त हुई ना। जैसे चाहे जो चाहे वह कर सकते हैं। अधिकारी के संकल्प में ये कभी नहीं आएगा कि चाहते नहीं है, हो जाता है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, हो जाएगा। तो इससे सिद्ध है कि अधीन है। जो अधीन होगा वह अधिकारी नहीं होगा। जो अधिकारी होगा वह अधीन नहीं। या रात होंगी या तो दिन होगा, दोनों इकट्ठे नहीं। अधिकार और अधीनता दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। Either there is right that you feel, or there is subservience. तो या तो एक ही हो सकता है, either you have अधिकार और you have अधीनता। माताएं अधिकारी बन गई, लोगों ने कहाँ फेंक दिया था और बाप ने कहाँ रख दिया। लोगों ने पाँव की जुत्ती बना दिया और बाप ने सिर का ताज बनाया। खुशी है ना। कहाँ जुत्ती और कहाँ ताज, कितना फर्क है। अभी तो शक्ति स्वरूप बन गए। पांडव भी शक्ति रूप में देखते हैं ना। शिव शक्ति भी विजयी है तो पांडव भी विजयी है। अविनाशी निश्चय, अविनाशी नशा है तो सदा ही विजय निश्चित है। सो नशा निश्चय को पक्का करता है, राइट। नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, तो ऑटोमेटिकली निश्चय भी पक्का हो जाएगा। और निश्चय है तो विजय पक्की है। ओके, सो ग्रुप 2 यू गॉट योर ब्लेसिंग्स। नाउ ग्रुप 3, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए रोज खुशी की खुराक खाइए। सभी अपने को खुश नसीब आत्माएं अनुभव करते हो। जो खुश नसीब आत्माएं हैं उनके मन में सदा खुशी के गीत बजते हैं। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये गीत बजता है ना। ये खुशी का गीत गाना तो सभी को आता है ना। चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, सभी गाते हैं। और मन में है ही क्या जो चले, यही खुशी के गीत बजेंगे ना। और सब बातें खत्म हो गई, बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तब खुशी के गीत बजते हैं। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। वैसे भी गाया हुआ है खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं।
तो खुशी की खुराक खाने वाले हैं, जो खुशी की खुराक खाने वाले हैं, वो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे। ग्रुप 3 you check, am I always healthy? Am I always happy? Right? And if I'm happy, the proof will be that in my heart, I will constantly sing, Wah, Baba, Wah, Wah, my fortune, Wah. So बाबा कहते हैं जो अच्छी खुराक खाते हैं वो शरीर से कमजोर नहीं होते हैं। खुशी है मन की खुराक, मन कभी कमजोर नहीं होगा, सदा शक्तिशाली। मन और बुद्धि सदा शक्तिशाली है तो स्थिति शक्तिशाली होंगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। तो खुशी की खुराक खाते हो या कभी खाते हो और कभी भूल जाते हो? ऐसा होता है ना? शरीर के लिए भी ताकत की चीजें देते हैं, तो कभी खाते हैं, कभी भूल जाते हैं। यह खुराक किस समय खाते हो? कभी खाओ, कभी न खाओ, ऐसे तो नहीं है ना? सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी नजर पड़ जाए और आप सदा नैनों में समाये हुए हो। कितनी फ़क्र की बात है। यू फील दैट आई एम ऑलवेज मर्ज्ड इन बाबा's eyes. गॉड हैज़ मेड मी बिलोंग टू हिमसेल्फ। बाबा कहते हैं वो तो एक घड़ी की नज़र कहते हैं। हम्म, और आप रहते ही बाप की नज़रों में हो। इसीलिए टाइटल है नूरे रत्न, आंखों के नूर। तो वे तड़पते हैं और आप समा गए। इसको कहा जाता है खुश नसीब। सोचा भी नहीं था लेकिन बन गए। अपना नसीब देख करके नशे में रहते हो ना? वाह वाह। अभी हाय हाय तो नहीं करते हो? कभी हाय हाय करते हो? मैं बाबा पूछ रहा है, थोड़ा भी दुख की लहर अनुभव हुई अर्थात हाय हाय हुई। हाय यह होना नहीं चाहिए था, ऐसे हो गया। कभी दुख की लहर आती है? अगर ऐसा संकल्प आता है कि अरे this shouldn't have happened but this happened, so that means there is little bit feeling of sorrow, right? Baba is saying सुखदाता के बच्चे को दुख कहाँ से आया? सागर के बच्चे हो और पानी सूख जाए तो उसे क्या कहेंगे? दुख की लहर समाप्त हुई। कभी तन का, कभी धन का, कभी बीमारी का दुख होता है। कभी पोतरे धोतरे बीमार हो जाए, कभी खेती में नुकसान हो जाए तो दुख होगा। सो चेक, हाँ, ग्रुप 3 यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू चेक। कुछ भी होगा, समझो आप बीमार हो जाए, आपके बच्चे बीमार हो या जॉब में नुकसान हो जाए और कुछ हो जाए तो दुख की फीलिंग आएगी या कैसे रहेंगे आप? सदा यह स्मृति में रहे कि हम सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुखदाता है। जो दाता है उसके पास है तभी तो देगा ना। हाँ, if I am a bestower, donor, then I will have it. Therefore, I will be able to give. So if I have happiness, then I will be able to give happiness. If I myself am in sorrow, I won't be able to give. बाबा कहते हैं तो इतना है जो मास्टर दाता बने हो। जिसके पास अपने खाने के लिए ही नहीं हो, वह दाता कैसे बनेगा? इसीलिए जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप को सागर कहते हैं। सागर अर्थात बेहद, खुटता नहीं है। कितना भी सागर को सुखाते हैं, खुटता नहीं। तो आप भी मास्टर सागर हो, नदी नाले नहीं हो। भाग्य विधाता बाप बन गया तो बाप के पास जो है वह बच्चों का है। भाग्य आपका वर्षा है। भाग्य आपका वर्षा है। वर्षा संभालने आता है या गवाने वाले हो? कई बच्चों को संभालना नहीं आता है तो खत्म कर देते हैं और कईयों को संभालना अच्छा आता है तो बढ़ा देते हैं। आप कौन हो? अपने भाग्य को बढ़ाने वाले हो ना। ऐसा भाग्य सारे कल्प में अभी मिलता है। तो ऐसी अमूल्य चीज बढ़ानी है, न कि गवानी है। और बढ़ाने का साधन है बांटना। यू हैव टू शेयर व्हाट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम गॉड
and that is increasing my fortune. It's like increasing my fortune. जितना औरों को भाग्यवान बनाएंगे अर्थात भाग्य बांटेंगे उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। गायन है ना कि जब ब्रह्मा ने भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या? तो ब्रह्मा ने भाग्य बांटा और ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या करते हैं? वो भी तो भाग्य बांटते हो ना। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। फिर दूसरा धन खर्च करने से कम होता है। माना स्थूल धन, वेल्थ, और ये भाग्य जितना खर्चेंगे उतना बढ़ेगा। पांडव तो कमाने में होशियार होते हैं ना, राइट? पांडवास, क्योंकि जानते हो कि एक जन्म जमा का है और अनेक जन्म खाने के हैं। सतयुग में कमाई करेंगे क्या? आराम से खाते रहेंगे। एक जन का पुरुषार्थ और अनेक जन की प्रारब्ध, तो जन जन के लिए इसी एक जन्म में इकट्ठा करना है। अच्छा, सभी संतुष्ट हो ना? ब्राह्मण जीवन में अगर संतुष्ट नहीं रहे तो कब रहेंगे? अभी ही संतुष्टता का मजा है। ब्राह्मण जीवन का लक्षण ही है संतुष्ट रहना। संतुष्ट है तो खुशी है, अगर संतुष्टता नहीं तो खुशी नहीं है। अच्छा, Amy Ben, what should I do? Should I continue fourth group? I cannot hear you. I think you can continue. Okay. ग्रुप नंबर 4, ड्रामा के ज्ञान की स्मृति हर विघ्न को नथिंग न्यू कर देंगी। So number 4, what you have to do is have the awareness of drama and all the obstacles will feel like nothing new. अपने को सदा विघ्न विनाशक आत्मा अनुभव करते हो या विघ्न आए तो घबराने वाले हो? विघ्न विनाशक आत्मा सदा ही सर्व शक्तियों से संपन्न होती है। So see yourself as Lord Ganesha, right? I am the destroyer of obstacles. विघ्नों के वश होने वाले नहीं, विघ्न विनाशक हो। कभी विघ्नों का थोड़ा प्रभाव पड़ता है, कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न आता है तो स्मृति रखो कि विघ्न का काम है आना और हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना। Very important. Remember, it is the task of the obstacle to come and it is my task to be a destroyer of obstacles. विघ्नों का काम है आना, मेरा काम है विघ्न विनाशक बनना। जब नाम है विघ्न विनाशक तो जब विघ्न आएगा तब तो विनाश करेंगे ना। तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि हमारे पास ये विघ्न क्यों आता है। विघ्न आना ही है और हमें विजयी बनना ही है। तो विघ्न विनाशक आत्मा कभी विघ्न से न घबराती है और न हार खाती है। बाबा पूछ रहा है, ऐसी हिम्मत है? क्योंकि जितनी हिम्मत रखते हैं, 1 गुना बच्चों की हिम्मत और 1000 गुना बाप की मदद। 1 step of courage I take and he will take 1000-fold steps to help me, right? This is a spiritual law. Baba says, तो जब इतनी बाप की मदद है तो विघ्न क्या मुश्किल होगा। इसलिए कितना भी बड़ा विघ्न हो, लेकिन अनुभव क्या होता है? विघ्न नहीं है लेकिन एक खेल है। तो खेल में कभी घबराया जाता है क्या? खेल करने में खुशी होती है ना। ऐसे खेल समझने से घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे। तो सदा ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न को नथिंग न्यू समझेगा। तो आई हैव टू आस्क माई सेल्फ, मैं समझती हूँ ऐसा? नई बात नहीं है, बाबा कहते हैं बहुत पुरानी है। कितनी बार विजयी बने हो? अनेक बार। याद है या ऐसे ही कहते हो? हाँ, सुना है कि ड्रामा रिपीट होता है, इसीलिए कहते हो या समझते भी हो कि अनेक बार हमने किया है? अगर ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में क्लियर है कि हूबहू रिपीट होता है, तो उस निश्चय के प्रमाण हूबहू जब रिपीट होता है तो अनेक बार रिपीट हुआ है और अब रिपीट कर रहे हैं। हाँ माताएं, आपने रोटियां कितनी बार बनाई हैं?
और अभी आपको बोले रोटी बनाने के लिए, तो नींद में से भी उठ के बना सकते हो, करेक्ट? बिकॉज़ बहुत बार रिपीट किया है आपने और अभी एक बार आपको बोलेंगे करने तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, राइट? सो इट्स लाइक दैट। आई हैव टू हैव द अवेयरनेस दैट ड्रामा बहुत बार मैंने विजय प्राप्त की और अभी भी प्राप्त करूँगी। लेकिन निश्चय की बात है बाबा कहते हैं, अगले कल्प में और कोई विजयी बने और इस कल्प में आप विजयी बनो, ये तो हो नहीं सकता है। क्योंकि जब बना बनाया ड्रामा कहते हैं, तो बना हुआ है और बना रहे हैं, अर्थात रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि अचल अडोल रहता है। अचल घर किसका यादगार है? ज्ञान के राजों में सॉरी ज्ञान के राजों में जो अचल होता है, द सीक्रेट्स ऑफ नॉलेज आई अंडरस्टैंड एंड वन ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ नॉलेज इज दैट ड्रामा इज बेनिफिशियल, राइट? तो बाबा कहते हैं जो ज्ञान के राजों में अचल रहता है उसका यादगार अचल घर है। तो ये नशा रहता है ना कि हम प्रैक्टिकल में अपना यादगार देख रहे हैं। जो सदा विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहता है वह सदा ही डबल लाइट रहता है। दिस इज अ साइन, यू विल बी डबल लाइट। कोई बोझ है? बाबा पूछ रहा है। सब कुछ तेरा कर लिया है कि आधा तेरा और आधा मेरा? हाँ, 75% बाबा का और 25% मेरा। कभी तेरा कह देते हो और जब मतलब हो तो मेरा कह दो। हाँ, मेरा मेरा कहते तो अनुभव कर लिया ना, क्या मिला? तेरा कहने से भरपूर हो जाएंगे, मेरा मेरा कहेंगे तो खाली हो जाएंगे। तो सदा डबल लाइट अर्थात ही सब कुछ तेरा। जरा भी अगर मोह है तो मेरा है। हाँ, तेरा अर्थात ही निर्मोही, डिटैच्ड। सो दिस इज अनदर साइन। और लास्ट ग्रुप नंबर 5, सब कुछ समर्पित कर एवर रेडी बनो। सभी अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझते हो। You are the businessman, Baba is saying, right? My one step and I have multi-million fold income in every step. कितना जमा किया है? बाबा पूछ रहा है, अरब खरब कितना जमा किया है? हिसाब कर सकते हो? आजकल का कंप्यूटर हिसाब कर सकता है। तो सारे कल्प में और सारे वर्ल्ड में ऐसा साहूकार कोई होगा? आप सभी हो या कोई कम हो, कोई ज्यादा हो? सभी भरपूर हो। सदा ये नशा रहे कि हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाली आत्मा हूँ। लौकिक दुनिया में कहते हैं कि इतना कमा कर इकट्ठा करे जो वंश के वंश खाते रहे। बोलते हैं ना 7 पीढ़ियां बैठ कर खाए, इतना कमाई करो। तो आपकी कितनी जनरेशन खाती रहेंगी? कितनी पीढ़ियां खाएंगी हमारी? हु विल आंसर दिस? एक जन्म में कोई बोल रहा है, कितनी पीढ़ियां खाएंगी हमारी? 21. 21, राइट, करेक्ट। एक जन्म में अनेक जन्मों की कमाई जमा कर ली है। दिस वन बर्थ आई एम अक्यूमुलेटिंग फॉर 21 बर्थ्स। और अनेक जन्म आराम से खाते रहेंगे। सतयुग में अमृत वेले उठकर योग लगाएंगे? बाबा पूछ रहा है, योग की सिद्धि प्राप्त करेंगे? जैसे पढ़ाई तब तक पढ़ी जाती है जब तक पास नहीं हो जाते हैं। तो अनेक जन्मों जितना जमा किया है ना, कभी भी विनाश हो जाए तो आपका जमा रहेगा ना? या कहेंगे कि थोड़ा समय मिले तो और कर ले? हाँ, अभी और टाइम चाहिए। एवर रेडी हो? बाबा इज आस्किंग। आप यहाँ आए हो और यही विनाश शुरू हो जाए तो सेंटर या सेंटर का सामान याद आएगा? कुछ याद नहीं आएगा ना। इतने बेफिक्र बादशाह बने हो ना। जब दे भी अपनी नहीं तो और तो क्या ही अपना है। तन मन धन सब दे दिया ना। जब संकल्प किया कि सब कुछ तेरा तो एवर रेडी हो गए ना। सभी ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं बाप का और बाप मेरा। सो ग्रुप नंबर 5, this is the determination have you made that I belong to Baba and Baba belongs to me, period, nobody else, right? संकल्प किया या दृढ़ संकल्प किया? कोई फिक्र नहीं। कोई ऐसी खबर आ जाए तो फिक्र होगा? फ्लैट याद नहीं आएगा ना।
अच्छा है, पक्के हैं। जब ब्राह्मण बनना ही है, तो पक्का बनना है। कच्चा बनने से क्या फ़ायदा? जीते जी मर गए कि थोड़ा-थोड़ा श्वास चलता है। कहाँ श्वास छिप तो नहीं गया है? प्रीवियस बर्थ का कुछ छिपा हुआ तो नहीं है? देखो, बाप का बच्चों से प्यार है, तो प्यार की निशानी क्या होती है? प्यार की निशानी है कि जिससे प्यार होता है, उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो बाप ने सब वर्षा आपको दे दिया ना, कुछ अपने पास अपने लिए रखा है। और देखो, ऐसे कोई प्यार नहीं कर सकता है जो रोज इतना प्यार का पत्र लिखे। रोज मुरली कौन लिखेगा भाई? रोज लव लेटर कौन लिखेगा? कितना भी लव हो आपस में, रोज तो कोई लव लेटर नहीं लिख सकता, राइट? सो बाबा इज सेइंग ऐसा कोई प्यार नहीं कर सकता जो रोज इतना प्यार का पत्र लिखे। रोज याद प्यार मिलता है ना, तो बच्चों का प्यार है, तब बाप प्यार का रिस्पॉन्ड देते हैं। आपका भी इतना ही प्यार है ना, कि बाप से भी ज्यादा प्यार है। प्यार की और निशानी है कि जिससे प्यार होगा उससे कभी भी अलग नहीं होंगे। तो बाप बच्चों को कभी अलग नहीं करता है, सदा साथ है और साथ रहेंगे। और कोई है ही नहीं जिसका साथ पकड़ो। बाप समान बनने का पुरुषार्थ फास्ट गति से कर रहे हो ना, समीप आने वाले हो ना। कौन सी माला में आने वाले हो? 108, 16,108 में आने वाला कोई नहीं है। तो 108 में 108 की माला डबल विदेशियों की बननी है। अच्छा है, लक्ष्य सदा श्रेष्ठ रखना ही यथार्थ पुरुषार्थ है, राइट? एम एट द स्काई एंड यू रीच द ट्री टॉप। तो एटलीस्ट मुझे मेरा लक्ष्य श्रेष्ठ रखना है, यही यथार्थ पुरुषार्थ है। मनसा सेवा और वाचा सेवा दोनों करते हो या एक करते हो? डबल सेवा करते हो ना? सहज कौन सी लगती है? तो किसी ने कहा मनसा सेवा और कुछ लोगों ने कहा वाचा सेवा। दोनों ही अभ्यास जरूरी है, क्योंकि जैसा समय वैसी सेवा कर सकेंगे। तो सभी जगह सेवा अच्छी चल रही है। विदेश में सत्युग के आदि की जो संख्या है, उनमें से कितने तैयार किए हैं? 1 लाख तैयार हुए हैं। इंडिया 8 लाख करे तो फौरन 1 लाख तो करे ना। कब करेंगे? कितना टाइम चाहिए? अभी सभी को समाचार गया है ना, 1 मास में एक तो कर सकते हो ना? हो सकता है। तो 12 मास में कितने हो जाएंगे? 12 लाख हो जाएंगे। समय आप मालिकों का इंतजार कर रहा है, तो कम से कम 9 लाख तो तैयार चाहिए ना। मनसा और वाचा डबल सेवा से जल्दी सेवा को बढ़ाओ। सेवा का उमंग अच्छा रहता है, लेकिन सदैव आगे बढ़ते रहना है। इसलिए सेवा का उमंग है, और आगे उमंग को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के पुरुषार्थ की लगन और सेवा की लगन दोनों को देख करके हर्षित होते हैं। इसीलिए बहुत फास्ट गति से तैयार करो। And then Baba is talking up to double foreigners little bit more. But main essence इसका यही है कि sometimes नहीं करना है, कभी कभी नहीं करना है। हाँ, always, सदा सदा, ऐसे नहीं कभी होता है कभी नहीं होता है। वो बात बाबा इसमें याद दिला रहे बच्चों को। So maybe you read this, huh? Group 5. Sorry, couldn't complete yours. I think I should stop now, no? But it's very beautiful, beautiful blessings for each group. So let's take a pause and then we can share later. Om Shanti. We can unmute ourselves and we can have our sharings.
I like this point in which Baba says, हमेशा ये कहो कि आप विजयी थे, आप विजयी हैं और आप विजयी रहेंगे और हर कार्य को चेक करते रहो. ओम शांति. Yeah. It's such a beautiful guarantee, no? That I was victorious, I am victorious, and I will be victorious all the time. So, yeah, intoxication. Om Shanti, sister. Om Shanti. Baba says about ek bal, ek bharosa, one Hmm. strength, one support. I took that one. Om Shanti. Very nice. Very nice. Om Shanti. Sister, yesterday you said about to focus on the Sakar Murli, and I wasn't reading the Murli. I wrote 10 Srimad and whole time engrossed, and then thrice I, kind of rehearsed and saw them. So it was very interesting activity. I said, Baba, you have given quite a homework, because then I kept thinking there were so many Srimad involved, so many ishares. And what one practice I'm doing these days, like today also said, ki victories are ours, will be always. So what I'm doing is small practice daily in the morning. First, I used to open my window. Then I used to say, hello, good morning, earth, good morning, sky, good morning, air, water, like 5 elements. And Brihaspati ki Jupiter ki dasha. So what I'm doing these days, I'm saying good morning, peace. Like sky, I see daily, I'm doing it. Good morning, peace. And sun, I'm saying good morning, joy. Dharti ko dekh ke, good morning, power. And for air, I say good morning, love. And good morning, divinity. So I'm enjoying it so much. And I'm living in Delhi amidst so much of skyrocketing buildings, so many people. And I say Jupiter's Dasha for everyone. So I'm liking it, and I'm feeling it's the easiest way to manifest those are Mansa Seva. So it's quite happening. So it's just a suggestion to everyone. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Yeah. Homework kiya Om to Shanti. Om Shanti, Sujata Ben. Yes. Yeah. I like this point. सदा तंदुरुस्त रहने के लिए रोज खुशी की खुराक खाओ. खुश नसीब आत्मा गाता है, बाबा वाह वाह मेरा भाग्य वाह. Like this, I sing this in my heart every day. So this will be my, because ever healthy and ever the very gist of this life, Brahmin life. It has to be. Yeah. Right. So it's group number 3, huh? You chose. Very nice. Yeah. Om Shanti, sister. What Baba says today is when whatever we accumulate now for this one birth, we can sit and eat that for 21 birth. So the hard work that we do now is an income at every step. Whenever we feel little down, so when we think about the reward and the bhagya that we are going to get, then that nasha will come, and then we try to work towards the income that we are going to receive for 21 birth. Then that will make us keep boosted, and we'll progress. Right. Very nice. Yeah. Just maintain intoxication, right? In whichever form you can. Yeah. Om Shanti. Actually, the Murli was very, very nice, full of intoxication. For each of the group, I have taken a few points from 2 or 3 groups. The first thing is that whatever task I'm performing, I just have to keep one thing in mind, that is my state should be elevated. The second thing, and all the sisters have shared about Dil Khush Hoke Karna. And very important thing which I have taken from here is विघ्न तो आएंगे ही ना, विघ्न का काम है आना, और
विघ्न विनाशक बन के हमें उन्हें we have to solve it. We have to destroy it. And nothing new, nothing new, nothing new. And it's just a play. खेल है, बाबा ने कहा खेल है. It's just a play. This thing after a long time have come from this Murli. Khel hai. I have forgotten this word. I thought khel hai. It's just a drama. And nischay hai na. 100%. Baba said there should not be any percentage. 100%. It should be 100%. So I have taken 2 words for today. That is nischay or khel. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much for sharing. There's just 2 more months for me to be an year old for this university. And during this course, I've learned so many, all these small things has put so much of intoxication in my life, like ek bhal, ek bharosa, those small things. Yeah, Baba is beautiful, wonderful. Hmm. Okay, shall we end with a meditation? Yes, please. Okay, if anybody has to leave, that's perfectly fine. तो हिंदी में या इंग्लिश में एमी बहन? As you wish, as you wish. I think English, because this is the English group. I would prefer, thank you. All right, let's sit straight. Let's bring our attention to the center of the forehead. And gently, I remind myself that I am on the confluence age, companion of God Himself. The age is most beneficial. The time is beneficial. The drama is beneficial. The bestower is my Father. My destiny is elevated. So there is nothing for me to think about. I relax in this carefreeness. I surrender everything to the one Father. And I maintain an elevated stage where I, the soul, am full of love, full of happiness, internal joy, the one who understands all secrets of knowledge. I am child of the Supreme. So maintain this intoxication, and with this awareness, the elevated stage naturally comes. The moment I am soul conscious, I am flower in Baba's garden. The flower that spreads the fragrance of all the divine qualities. So remind yourself of any one point that you took from today's Murli. Just one point that you would like to focus throughout the day. And yes, I can be greedy and I might like many points, but in this moment, as I am connected with the Supreme Shiv Baba, I just remind myself of one point. So let this point emerge in your heart. And with all your love and determination and power, let Baba know that throughout the day I will practice this point. So much so that I become an embodiment of this point. Whatever actions I perform throughout the day, as simple as just sitting
or eating or walking. But when I infuse those actions with remembrance of the beloved Father, I create elevated actions in those moments. I create charitable actions in those moments. And I become extraordinary in those moments. So for rest of the day, just use your favorite point for the day and practice it every now and then. And at night, when you look at your chart, you tell Baba that how much effort you made with so much love that you have become an embodiment of that point. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Tina Ben, for explaining us in English. Thank you so much, everyone. See you tomorrow morning at 5:30 a.m. Have a great day. Om Shanti, and Om thank you all Shanti. for contributing Thank to. you. Om Om Shanti. Shanti. Om Shanti, everyone. Have a lovely day ahead. Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.